dear students. Hope you all are doing great. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we'll be proceeding with the novel Goodbye, Mr. Chips by James Hilton. Before today's lecture, you had been doing it with Madam Varda. Unfortunately, she will not be continuing with us or with you people anymore. So I'll be teaching you Mr. Chips also, as we are doing textbook. So I am told that you have covered 5 chapters of the novel, and I will start chapter 6 with the pre-assumption that you have learned it clearly and you have got fair idea of what the novel is, what are its constituent elements like characters, plot, dialogue, and you must be familiar with the story of the novel, or at least story till chapter number 5. So we'll be starting from chapter number 6, which is actually the time period in the life of the Chips after his marriage. He has married to Catherine, and now we will be seeing that what was the effect or impact of Catherine on his life, whether it was a good effect, whether she made she made him more happy. So we'll be seeing in chapter number 6. So this is page number 13. I advise you people to open up the book so that you may follow me line by line. We will be having the same pattern as we do in the textbooks. I read line by line and I try to explain it. We'll be doing different difficult words side by side simultaneously. So we won't be needing a separate lecture on the exercises or the summary sort or on the synonyms. So this is page number 13, chapter number 6. There had followed then a time of such happiness that Chips, remembering in long afterward, hardly believed it could ever have happened before or since in the world. कैथरीन से शादी के बाद जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई थी, या अच्छा वो टाइम था, ब्लिसफुल स्टेट थी किसकी, कैथरीन की और मिस्टर चिप्स की, कि मिस्टर चिप्स अब आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब इवन कैथरीन जो है वो नहीं है या वो खुद बैठे होते हैं, उनका भी बुढ़ापा आ चुका है, जब वो ये सारी बातें याद करते हैं तो उनको लगता है शायद ये पीरियड जो था वो कहीं था भी या नहीं था, मतलब इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, फॉर हिज मैरिज वॉज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस, और उसकी जो शादी थी वो बेहतरीन किस्म की एक शादी थी और एक बिल्कुल सक्सेस थी. ट्रायम्फेंट मतलब बेटा सक्सेस यानी कि कामयाब. Catherine conquered Brookville as she had conquered Chips. She was immensely popular with the boys and masters alike. As she conquered Mr. Chips, मतलब जिस तरह मिस्टर चिप्स का दिल कैथरीन ने जीत लिया था, बिल्कुल इसी तरह ब्रुकफील्ड को भी कैथरीन ने जीत लिया था. मैं जब भी ये लाइन पढ़ती हूँ, आई कैन रिकॉल द लाइन ऑफ शेक्सपियर. ही राइट्स, she came, he came, he saw, he conquered. She came, she saw, she conquered. वो आई, उसने देखा, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया. I don't know whether it is she or he, but Catherine was like that. Catherine saw Mr. Chip and she conquered him. Same is the case was with Brookfield. She conquered the Brookfield too. Brookfield का भी दिल जो है वो मिस्टर चिप्स के दिल की तरह कैथरीन ने जीत लिया. वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे और जितने भी वहाँ के मास्टर्स थे वो सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. इमेंसली पॉपुलर मतलब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर थी. इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा. Even the wives of the master, tempted at first to be jealous of someone so young and lovely, could not long resist. अच्छा, शुरू में क्या होता है कि जो वहाँ के जो मास्टर्स थे या जो टीचर्स ऑफ द ब्रुकफील्ड, देयर वाइफ, दे फेल्ट जेलस, दे फेल्ट एनिमियस टुवर्ड्स द Catherine, because Catherine was too young and too energetic. She was just very lovely, but she was so kind a soul that nobody could keep hatred or kind of envy against her or any grudge. So that is why they started liking her too. शुरू में उनकी वाइफ जो थी वो भी बहुत ज़्यादा जेलस होती थी, किससे, कैथरीन की ब्यूटी से या उसकी यूथ से, लेकिन वो भी क्या ना कर सकी, वो उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा देर
उनकी ज़िंदगी में चेंज भी अचानक आया। द सडन लव ऑफ बॉयज फॉर अ मैन हु वाज काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट। देखा, वो काइंड ज़रूर थे लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे, बिकॉज टू मच सॉफ्टनेस स्पॉइल द स्टूडेंट एंड दैट इज़ वाई अ टीचर हैज़ टू कीप स्ट्रिक्टनेस ऑल्सो। हु अंडरस्टूड देम वेल बट नॉट टू मच। और वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा समझते थे लेकिन बिल्कुल उसमें इंटरफेयर नहीं करते। वो फ्रेंडली ज़रूर थे बट उनके फ्रेंड नहीं थे। But not to joy, and whose private happiness linked him mnemonics and with their own, whose private happiness linked him with their own। और उसकी जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी की खुशी थी वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उनसे को लिंक कर दिया था उन्होंने, यानी कि उसके स्टूडेंट्स महसूस कर सकते थे उसकी खुशी को। He began to make little jokes, वो छोटे छोटे जोक्स क्रैक करने लगे अपने क्लास में। द सॉर्ट दैट बॉयज लाइक स्कूल। और किस किस्म के जोक बोलते थे या कहते थे जिस तरह के स्कूल के बच्चे पसंद करते हैं। Mnemonics and puns that raised laughs and at the same time imprinted something in the mind। Mnemonic and puns बेटा ये एक किस्म की विटी सेइंग्स होती हैं, जैसे कि कोई एक पन होता है, एक ही वर्ड को दो, एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड हो लेकिन वो दो तरह के मीनिंग दे रहा हो, तो उसको हम पन कहते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जनाब दिस आई एम सिक बिकॉज ऑफ लिवर। मैं लिवर की वजह से सिक हो गया। अब हो सकता है उसका अपना जिगर ख़राब हो, या हो सकता है उसने किसी का जिगर खाया हो, मुर्गी का, वो ख़राब हो। सो देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल ऑफ पन्स टू। There was one that never failed to please, though it was saved. Wait. There was one that never failed. He began to make little jokes, the sort that school boys like. Mnemonics and puns. बेटा mnemonics and puns जो होती हैं ये विटी सेइंग्स होती हैं जिसमें जो वर्ड्स होते हैं वो ट्विस्ट करके यूज़ किए जाते हैं। मतलब वर्ड्स की ट्विस्टिंग से एक मिज़ाह पैदा किया जाता है। दैट रेज लाफ, और उसकी वजह से बच्चे जो थे वो हंसने लग जाते थे। एट द सेम टाइम प्रिंट इन समथिंग इन द माइंड, और उनके दिमाग पे ना सिर्फ कुछ ना कुछ छोड़ के जाते थे। मतलब ऐसा मजाक नहीं करते थे मिस्टर चिप्स कि बस वो सिंपल एक मजाक हो और हंसी मजाक में बात ख़त्म हो जाए, नो। बल्कि वो क्या किया करते थे, कुछ ना कुछ वो सीख भी लेते थे बच्चे उससे। There was one that never failed to please, though it was only a sample of many others। और wherever his Roman history forms came to deal with lex Cornelia, the law that permitted partisan to marry plebeians, Chips used to add, so that you see, if Miss Plebs wanted Mr. Patrician to marry her and he said he could not, she probably replied, oh yes you can, you liar। roars of laughter। अभी उनके एक जोक की आपको स्पेसिमेन दिखाई है, एग्जाम्पल दिखाई है उन्होंने, कि जब वो रोमन हिस्ट्री पढ़ा रहे होते, यानी कि सल्तनत रोमानिया की हिस्ट्री पढ़ा रहे होते थे, और फिर वो किस पे आते थे, ये लेक्स कैनेलिया एक लॉ था बेटा, जो कि दो स्टेट्स के दरमियान मैरिजेस को जो है वो, या तो किस्म की आप कह सकते हैं कबाइल के दरमियान मैरिजेस को लीगल करार देता था। और वो कबाइल कौन थे, वो कबाइल थे प्लेबियंस एंड पेट्रिशियंस। ठीक है, तो पहले ये पेट्रिशियन और प्लेबियंस जो है वो नहीं कर सकते थे शादी आपस में, लेकिन फिर ये लॉ पास हो गया लेक्स कैनेलिया, और उसकी वजह से फिर वो शादी कर सकते थे। अब देखें, वो एक लॉ पढ़ाने के बाद लॉ की स्टेटमेंट दे देते थे मिस्टर चिप्स, फिर वो अपनी तरफ से ये बात ऐड करते थे, सो दैट यू सी इफ मिस प्लेब्स वांटेड मिस्टर पेट्रिशियन टू मैरी हर। अगर कोई मिस प्लेब है, यानी कि कोई लड़की है जो कि प्लेबियंस है, और वो चाहती है कि किसी पेट्रिशियन से शादी कर ले, अब बेशक वो पेट्रिशियन उससे शादी नहीं करना चाहता, तो वो ये कहता, वो कहेगी उससे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो वो जल्दी से बहाना बनाएगा, नहीं नहीं हम तो शादी नहीं कर सकते, तुम प्लेब हो, मैं पेट्रिशियन हूँ। तो वो फ़ौरन से रिप्लाई करेगी, नहीं नहीं कर सकते हैं, ओ यस यू कैन, यू लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, हम शादी कर सकते हैं क्योंकि अब तो लॉ पास हो गया। इस किस्म के वो छोटे छोटे जोक्स जो थे वो क्रैक करते थे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे, रोड्स ऑफ लाफ्टर, बच्चे जो है वो हंसने लग जाते थे। सो लेट्स एंड आवर लेक्चर हेयर, वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू टुमारो। डू मार्क योर अटेंडेंस and do subscribe the channel for until tomorrow. Take care. Allah Hafiz.